Jai Hind students, today we are going to discuss about standardization of potentiometer and its sensitivity. Standardization of potentiometer को हिंदी में विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं एंड सेंसिटिविटी को सुग्राहिता कहा जाता है. In fact, if you want to determine the value of potential gradient of given potentiometer, then the process is called standardization of that potentiometer. उसके विभव प्रवणता का मान अर्थात पर यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना ही उसका स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण करना कहलाता है. तो पहले हम पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं. मैंने आपसे कहा था कि पोटेंशियोमीटर के जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनमें प्राइमरी सर्किट एज इट इज़ रहेगा. तो यहाँ भी प्राइमरी सर्किट एज इट इज़ रखते हुए सेकेंडरी सर्किट के अंदर हम एक स्टैंडर्ड सेल यूज़ करेंगे. स्टैंडर्ड सेल कौन सा हो? ऐसा सेल जिसका ईएमएफ लंबे समय तक कांस्टेंट बना रहे. फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर जनरली कैडमियम सेल इज यूज्ड. ईएमएफ ऑफ cadmium cell is about 1.0186 volt. If cadmium cell is not available, then we can use a Daniell cell whose EMF is 1.08 volt. Let's see how to determine value of X, that is potential gradient or potential drop per unit length of given potentiometer. Primary circuit will be the similar. Here AB is wire of galvanometer. This is called primary circuit in which a large accumulator, a rheostat and a K1 are connected in series to the points A and B. Those are endpoints of wire of potentiometer. This is secondary circuit. In secondary circuit we have used a standard cell whose EMF is denoted by ES. Positive terminal of this standard cell is connected to A. Positive terminal of light accumulator of primary circuit is also connected to A. You have to keep this in mind that point A of the wire should be at higher potential. जितने भी सेल आप जुड़ेंगे कोई सा भी एक्सपेरिमेंट हो अगर वो पोटेंशियोमीटर का है तो A हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा. जितने भी सेल होंगे सभी के पॉजिटिव टर्मिनल यहीं जोड़ने हैं. आगे जब हम पढ़ेंगे और भी हमें इसको क्लियर होगा. तो सेकेंडरी सर्किट के अंदर हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेल जोड़ दिया. या तो ये कैडमियम सेल है, अवेलेबल नहीं तो डेनियल सेल का यूज भी हम कर सकते हैं. और गैल्वेनोमीटर से जोड़ के हमने इसको एक जॉकी से जोड़ दिया. मान लेते हैं कि सी पॉइंट के ऊपर जब हम जॉकी को प्रेस करते हैं तो नल डिफ्लेक्शन की पोजीशन हमें मिल जाती है. इज इट क्लियर? बिफोर गेटिंग द नल डिफ्लेक्शन पोजीशन, let me clear it. If we put the jockey at point A and we press it after inserting key K1, then the galvanometer will show deflection in one direction. If we shift the jockey to point B and again we press it, then the galvanometer show deflection in reverse direction. If it happens, means the circuit is right. It is working properly. Now adjusting the position of this jockey, we will find out the point where if the jockey is pressed, no deflection is produced in the galvanometer. This is called null deflection position. In null deflection position, if balancing length is denoted by LS, then according to the principle of potentiometer, we know that ES, that is EMF of standard cell, is equals X LS, where X is potential gradient or drop of potential per unit length of given potentiometer, wire of given potentiometer. Therefore X equals ES upon LS. We know
What is the EMF of the cell used in second circuit over here? हमें पता है इसकी वैल्यू, और किस बैलेंसिंग लेंथ पे हमें न्यूट्रल पॉइंट हमें मिल रहा है वो भी हमें पता है। तो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। वी वुड बी एबल टू डिटरमाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, मीन्स ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये जो प्रक्रिया है इसी को हिंदी में विभव मापी का मानकीकरण करना कहते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स ये एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नाउ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर मीन्स व्हाट? बाय शिफ्टिंग द jockey we get null deflection position in galvanometer, isn't it? At this point, if we shift the jockey little right or left and significant deflection is produced in the galvanometer, then the potentiometer is said to be sensitive. जरा सा उस बैलेंसिंग पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट के दाएं बाएं हम जोकी को खिसकाएं और गैल्वेनोमीटर में सिग्निफिकेंट डिफ्लेक्शन आ जाए तो हम ये कहेंगे कि जो पोटेंशियोमीटर हमें दिया गया है ये सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी को हिंदी में सुग्राहिता कहते हैं। तो ऐसे पोटेंशियोमीटर की सुग्राहिता अच्छी है। द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर और डिपेंड्स ऑन इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। जितना कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होगा, उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। एज वी नो दैट E equals x upon L, where x is potential gradient of the potentiometer, therefore x equals E upon L। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर से हम ये जानते हैं। तो हमने अभी ये देखा है कि जो सेंसिटिविटी है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर डिपेंड कर रही है। जितना कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा पोटेंशियोमीटर उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू को कम रखने के लिए हमें पोटेंशियोमीटर में जो वायर है उसकी लेंथ को बढ़ाना चाहिए। तो पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ को बढ़ाकर हम उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन x जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसकी वैल्यू को दो तरीके से कम किया जा सकता है। एक तरीका तो यही है कि हम जो पोटेंशियोमीटर की लेंथ है जिसे हम जनरली कैपिटल L से इंडिकेट करते हैं, इसको हम इंक्रीज कर दें। तो जब हम पोटेंशियोमीटर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका है इफ वी डिक्रीज amount of current in primary circuit, then we can also decrease the value of x. But in this condition, the potential difference between the points and points of the wire of potentiometer will decrease, which is not good. To increase the sensitivity of potentiometer, we increase the length of wire of potentiometer. इसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए अच्छा तरीका क्या हुआ, हम इसके तार की लंबाई को बढ़ा दें। इसी वजह से पोटेंशियोमीटर में लंबा वायर यूज़ किया जाता है, लॉन्ग वायर यूज़ किया जाता है।